तो आज हम लोग को कोलिजन स्टार्ट। Excuse me, हाँ जी, हाँ जी। sir. Dinesh sir was talking like you had postponed the exam, this module test. Is it somewhat like that? नहीं, वी हैव टू डिस्कस विद द टीम एक्चुअली। हम लोगों का जैसे सेंटर ऑफ मास तक फिजिक्स में आना था और आज हम खत्म ही कर रहे हैं, तो थोड़ा एक हफ्ते का समय हम और देना चाहते थे, 20 से 27 तक। तो आई डिस्कस विद द टीम उनका क्या है सारे लोगों का, और उसके बाद फिर आज शाम को आपको अपडेट कर देंगे। Okay, sir. ठीक है। Okay. 20 तारीख वाला एग्जाम 27 को शिफ्ट हो जाएगा, जो 28 को था। ठीक है। Okay. Okay. ठीक। क्योंकि अभी तुम लोग को प्रैक्टिस करना थोड़ा सा रहता है, मतलब अगर तुम लोग अभी आज मैं खत्म कर रहा हूँ तो कम से कम तुम लोग एक हफ्ते प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। 2 दिन के प्रैक्टिस से तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैं आज सारा अपडेट भी कर दूंगा, सारा अपलोड भी कर दूंगा, वर्क एनर्जी वाला मॉड्यूल और ये दोनों मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग उससे प्रैक्टिस कर लेना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। यस बच्चे। Sir, this test is postponed. Maybe we have to discuss among ourselves, because I am finishing this portion today, and maybe some portion I will be finishing on Monday also. So because this chapter was also going to come in the exam, it may get postponed by a week. On 27th the test will be on 27th now. So I'll just confirm it today by evening. Okay, is it okay? Okay, sir. Thank you, sir. That's what I was saying to Satpreet also. He also asked the same question. So I'll need to update these Google Classroom wala modules, so that whatever modules I have put, जो scanned copy मैंने last मेरे ख्याल से friction तक डाला था, उसके आगे के scanned copies भी डालने हैं, उससे आपको practice भी करना है। तो एक week मिल जाएगा आपको prepare करने के लिए, तो 27th को आप दे सकते हैं पेपर। ठीक है। Okay. So collisions. So collision is an event in which the strong force acts between two or more bodies for a short time, as a result of which the energy and momentum of the interacting particles change. In collision, particles may or may not come in real contact. For example, in collision between two billiard balls or a ball and a bat, there is a physical contact, while in collision of alpha particles by a nucleus, there is no physical contact. सो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो भी सकता है कोलिजन में, और फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना भी हो सकता है। ना 5 stages of collision, right? So process of collision can be divided into 5 parts. पहला है before the collision, interaction forces between bodies is negligible, so bodies approach each other. So यहाँ पे interaction forces negligible है before collision. उसके बाद कंप्रेशन स्टेज आता है जब कोलाइडिंग बॉडीज स्टार्ट कंप्रेसिंग ईच अदर. During this interval, some of its kinetic energy is converted into elastic potential energy of the body. During compression stage, bodies keep on approaching each other. तो अगर दो बॉडीज आ रही हैं, पहले अगर जब ये लोग दूर दूर है तब तो कुछ भी नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया. उसके बाद जब सेकेंड स्टेज आया, जब ये लोग टकराए, तो टकराने के बाद ये जो है एक दूसरे को कंप्रेस करेगा, राइट? सो कंप्रेस करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. ठीक है ना. थर्ड स्टेज है मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेज. तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, मतलब एक बॉडी ऐसे और दूसरा बॉडी ऐसे, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है जो भी इसमें कंप्रेशन होना था. सो अप्रोच बिटवीन बॉडीज स्टॉप, है ना. उसके बाद ये बॉडीज रेस्ट पे आ गई. At this instance, potential energy stored is maximum and both bodies have same velocity. ठीक है. तो जब इनका जो अप्रोच है वो रुक जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और इन दोनों का वेलोसिटी, अगर लेट से दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे. फोर्थ है एक्सपेंशन स्टेज. एक्सपेंशन स्टेज में अब धीरे धीरे क्या है, बॉडीज फिर से वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करेगा. So bodies start expanding, separating, and stored potential energy starts
converting back into kinetic energy. From start of compression stage to end of expansion stage, bodies exert equal and opposite forces on each other. After the collision, bodies get separated. उसके बाद फिर जब ये दोनों अपना अपना शेप रीगेन कर लिया, उसके बाद बॉडी विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. Force between bodies becomes zero, that is negligible again. Now momentum conservation in collision. So in a collision, the effect of external force such as gravity or friction are not taken into account. ठीक है, तो ये जो हमारा collision hai, in collision the effect of external force such as gravity or friction are not taken into account, as due to small duration of collision, average impulsive force responsible for collision is much larger than external forces acting on a system. तो जब collision हो रहा था, during collision external forces are not considered. जब external force नहीं consider करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने मोमेंटम के कंजर्वेशन में किया था, when there is no external forces the momentum is conserved. अभी तुरंत हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किया था ये, तो वही चीज बता रहा है, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस है वो इतना ज्यादा है ना, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए अप्लाई होता है, इम्पल्सिव फोर्स बहुत हाई होता है, जिसके वजह से एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो मच लार्जर देन द एक्सटर्नल फोर्स. So if no external impulsive forces act on a system, then total momentum of system of colliding bodies always remains conserved. So जब collision होगा, चाहे elastic collision हो चाहे inelastic collision हो, हम लोग देखेंगे दोनों collision क्या क्या होती हैं, है ना, इलास्टिक क्या होता है, inelastic क्या होता है, बट सारे collisions में momentum हमेशा conserved रहेगा. So during collision, so law of conservation of momentum is applicable to all types of collision. So in all type of collision, ये सबसे important है concept, in all type of collisions linear momentum is always conserved. So momentum is always conserved in all types of collision. Now energy conservation in collision. Energy कब conserve होगा? Energy तभी conserve होगा जब moment जो collision है वो elastic collision है. Kinetic energy तभी conserve होता है. In collision total energy is always conserved. Total mechanical energy हमेशा conserved होगा. But kinetic energy of a system may or may not be conserved according to the nature of collision. So kinetic energy is conserved. So total mechanical energy is always conserved in every type of collision. Kinetic energy of system is conserved. So kinetic energy of system is conserved when the collision is elastic. Now coefficient of restitution, right? So coefficient of restitution is defined as the ratio of velocity of separation between the two bodies after the collision to velocity of approach between the two bodies before collision. So coefficient of restitution E is velocity of separation by velocity of approach. ठीक है, तो हमेशा SA करके याद रखना, सेपरेशन बाय अप्रोच. साउथ अफ्रीका, सेपरेशन बाय
अप्रोच। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तुम देखोगे, अप्रोच मतलब अगर मान लो u1 का स्पीड मतलब m1 का स्पीड m2 से ज्यादा है, मतलब u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये पीछे से आके इसको हिट करेगा। भाई अगर ये दोनों को टकराना है तो जो ये पीछे है ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड ज्यादा होना होगा तभी तो आके पीछे से टकराएगा। तो बिफोर कोलिजन u1 u2 इसका स्पीड है और m1 m2 मास है। आफ्टर कोलिजन इनका स्पीड मान लो v1 v2 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा u1 u2 से बड़ा है तो रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 हो जाएगा। और सेपरेशन कब होगा? अब जब कोलाइड हो गया, कोलिजन के बाद बेसिकली ये v2 स्पीड से जा रहा है v1, इन दोनों के बीच में सेपरेशन तब बढ़ेगा जब v2 जो है v1 से बड़ा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v2 माइनस v1। तो E is equal to v2 minus v1 by u1 minus u2, velocity of separation by velocity of approach। ठीक है। इन जनरल तो आप ये देखिए, इन जनरल जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन में 0 से लेके 1 तक E का वैल्यू होता है। देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, so there is always some loss of kinetic energy if the collision is inelastic। और जो coefficient of restitution है उसका वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करता है। so if the collision is completely inelastic, मतलब purely inelastic, तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा। that is bodies stick together after collision। velocity of जब E का वैल्यू 0 हो जाएगा, E is equal to 0 मतलब velocity of separation क्या हो गया? 0 हो गया। E is equal to 0 का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0, मतलब ये दोनों अब सेपरेट ही नहीं करेगा एक दूसरे से, दोनों चिपक के मूव करेगा साथ में। मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ स्पीड से जा रहा था, ये कुछ से जा रहा था, आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी अगर एक दूसरे से चिपक जाए तो मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। और इस केस में मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन एंड देयर इज अ मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ? यस सर। टर्म्स हैं बेसिकली, ये टर्म्स तुमको याद रखने हैं और जो भी जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। नाउ टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कल तो जेई का डेट्स वगैरह आ गया, आईआईटी जेई का, तो नीट का भी अब जल्दी आएगा मेरे ख्याल से, है ना। आईआईटी जेई का डेट्स अनाउंस हो गया। 4 बार आईआईटी जेई अब होगा पूरे साल में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 बार आईआईटी जेई कंडक्ट होगा। सो देयर विल बी 4 टाइम्स। यस सर, देखा था मैंने, कोई ट्रॉल्स आता उसमें लिखा था ये वो हो गया, मतलब क्लास टेस्ट की तरह हो गया अब तो। हाँ, इन चारों में से जिसमें अच्छे नंबर आएंगे उसके नंबर काउंट होंगे। तो पता नहीं अब नीट का क्या चेंजेस वगैरह होता है, पता नहीं है, देखिए क्या होता है ना। टाइप्स ऑफ कोलिजन्स ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो इन इलास्टिक कोलिजन, so if in a collision kinetic energy after collision is not equal to kinetic energy before collision, the collision is said to be inelastic। so अगर kinetic energy conserved नहीं है, मतलब जो collision के पहले और collision के बाद अलग अलग kinetic energy है, तो उस केस में inelastic collision होगा। coefficient of restitution हमें पता है 0 और 1 के बीच में होगा। kinetic energy after collision will be less than kinetic energy before collision। Some of the energy is lost in the form of heat, sound, light and excitation। Perfectly inelastic collision में if in a collision two bodies stick together or move with same velocity after collision, the collision is said to be perfectly inelastic। Coefficient of restitution E becomes 0 and kinetic energy का loss is maximum। Perfectly elastic collision होगा, उस केस में क्या होगा? if in a collision kinetic energy after collision is equal to kinetic energy before collision, the collision is said to be perfectly inelastic। मतलब initial kinetic energy अगर final kinetic energy के बराबर हो तो perfectly elastic collision होगा। coefficient of restitution E 1 के बराबर है। there is no loss of energy
है ना, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज total kinetic energy after the collision. During collision, some of kinetic energy is temporarily converted into elastic potential energy of colliding bodies as they get compressed during collision. But after collision, मतलब जो बाद में फिर ये elastic potential energy वापस kinetic energy में convert हो जाएगा. Although kinetic energy is after collision is same as kinetic energy before collision, but we cannot say that kinetic energy is conserved during collision. मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर है, बट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोलिजन के समय ये काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो ड्यूरिंग इम्पैक्ट ईच ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज experiences a strong force. Therefore, during the period of impact, each of bodies change in momentum, but as a whole, the total momentum of the system does not change. So, in ideal collision, such as collision between gas molecules, atoms, electrons, protons, etc., the kinetic energy of the system of colliding particles remain constant before and after the impact. This type of collision is known as perfectly elastic collision. Remember that during collision, the kinetic energy of the particles change due to large impulsive forces. Type of collision on basis of direction of motion. So head-on or one-dimensional collision. तो हेड ऑन कोलिजन मतलब स्ट्रेट उसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसका वही होगा जो उसका मूवमेंट का है. So in a collision, if the motion of colliding particle is before and after the collision is along the same line, before the collision also they are moving in same line, and after the collision also they are moving in the same line, then we say that the collision is head on. The collision is said to be head-on or one-dimensional. Direction of the velocity of colliding objects are along the line of action of impulses acting at the instant of collision. Then it is called head-on or direct collision. अब oblique collision मतलब टकराने के बाद bodies अलग अलग direction में move कर जाए तो उसको oblique collision कहते हैं. So if two particle collision is glancing, that is such that their direction of motion after collision are not along the initial line of motion, the collision is called oblique. ठीक है, तो इनिशियल जो उसका मोशन है, तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर मतलब इसका जो मोशन है, इसका जो मोशन है, दोनों सेम लाइन में नहीं है. सेम लाइन में नहीं है इसीलिए ऑब्लिक कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद ये सब दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं. तो वही कह रहा है, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर कोलिजन आर नॉट अलोंग द इनिशियल लाइन ऑफ मोशन. इनिशियल लाइन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल था, बाद में ये दोनों कुछ एंगल्स पे मूव कर रहा है, तो इसको ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं. इलास्टिक कोलिजन अगर वन डायमेंशन में हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में, फिर हम लोग इलास्टिक कोलिजन जो है टू डायमेंशन और इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस करेंगे. सो इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व. तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, तुम पहले मोमेंटम को कंजर्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करोगे, सॉल्व करके उसके बाद जो भी अननोन है निकाल लोगे. बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी u1 u2, मास m1 m2. आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1, इसका v2. तो एज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू बॉडीज इज कंजर्व्ड, तो m1 टोटल इनिशियल मोमेंटम इज टोटल फाइनल मोमेंटम, एक इक्वेशन इससे मिल जाएगा तुमको. दूसरा, फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1, thus कोएफिशिएंट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of approach is equal to velocity of separation, u1 minus u2 is v2 minus v1. ये दूसरा हमारा रिलेशन हो गया. पहला रिलेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया, दूसरा रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, e इक्वल टू 1 इससे आया. तीसरा, अच्छा अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना. यहाँ पे सॉल्विंग द टू इक्वेशंस वी गेट v1 is equal to, so v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 u1 plus 2m2 m1 plus m2. तो बेसिकली क्या है, u1 u2 के टर्म्स में हम लोग v1 v2 को निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करके, है ना. इन दोनों को सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह, तो हमें ये वैल्यूज आ जाएगा v1 और v2 का.
चाहो तो तुम ये वैल्यूज याद भी कर सकते हो, या फिर वहां पे वैल्यूज डाल के हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वैल्यू डाल के सॉल्व करना ज्यादा आसान है रादर देन ये फॉर्मूलेज इतने लंबे लंबे याद करना। ठीक है, अब स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या है कि पहला स्पेशल केस कहता है, मैंने जानबूझ के ये वेलोसिटीज यहाँ दोबारा लिखी हैं जिससे कि स्पेशल केसेस को इसमें डाल के समझा जा सके। जब m1 का वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है ना, तो उस केस में देखो m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 करोगे, m1 का वैल्यू m2 से बहुत ज्यादा है तो m2 का वैल्यू m1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको हम लोग m1 माइनस m2 को m1 से ही रिप्लेस कर सकते हैं, और m1 प्लस m2 को भी m1 से ही रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। और इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 1 के बराबर हो गया। और 2m2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को m2 से रिप्लेस कर लो, क्योंकि सॉरी m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो ये m1 हो गया, है ना। और यहाँ पे जो m2 है वो बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे इस केस में ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा, जो 2m1 बाई m1 प्लस m2 का वैल्यू ये ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मास m1 बहुत ज्यादा होता है v1 का स्पीड, है ना, पहले वाले का स्पीड उतना ही उसी हिसाब से वो मूव करता रहेगा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। v2 वाला जो है ट्वाइस ऑफ u1 माइनस u2, मतलब जो वेलोसिटी जो बॉडी आके टकराया, मान लो u2 जीरो है, मतलब जो टारगेट है ये m1 है और ये m2 है। m2 मान लो इनिशियली रेस्ट पे था, ये इनिशियली u1 से मूव कर रहा था, टकराने के बाद इसका स्पीड v1 और इसका स्पीड v2 हो गया। अब होता क्या है, क्योंकि बहुत भारी ऑब्जेक्ट आके से टकराएगा तो इसका स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब v1 विल बी इक्वल टू u1 ओनली, बट हल्का वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ट्वाइस स्पीड से भागेगा, ट्वाइस ऑफ u1 के स्पीड से जाएगा। ठीक है, सो टारगेट जो है फ्लाइज अवे विद डबल द वेलोसिटी। और यही उल्टा होगा तब जब m1 m2 से छोटा है बहुत, तो उस केस में, ठीक है, m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, तो उस केस में ये -1 हो गया m1 माइनस m2 बाई दिस। और जो m2 बाई m1 प्लस m2 का वैल्यू करेंगे, m2 का वैल्यू बहुत ज्यादा है, m1 को इग्नोर कर देंगे तो ये 2 के वैल्यू बराबर आ जाएगा। ठीक है, टू के बराबर हो गया, 1 के बराबर। m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, तो ये 2m2, यहाँ पे 2 मिसिंग है, इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे। सो और 2m1 बाई m1 प्लस m2 करोगे, यहाँ पे m1 बहुत छोटा है तो नेग्लिजिबली स्मॉल, जीरो हो जाएगा। तो अब इसमें v1 का वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v1 के लिए ये तो -1 है, और जो 2m2 बाई m1 प्लस m2 है ये जीरो है, तो सॉरी 2 के बराबर है, तो -u1 प्लस ऑफ 2u2, v1 का वैल्यू ये हो जाएगा, और v2 का वैल्यू, तो ये वाला चीज तो जीरो ही हो गया, और ये जो m2 माइनस m1 है, m1 नेग्लिजिबल है, तो ये v2 जो है u2 के बराबर हो गया। मतलब अगर कोई बहुत हल्का ऑब्जेक्ट किसी भारी ऑब्जेक्ट से आके टकराता है, उस केस में जो v1 होगा, है ना, इसका जो स्पीड होगा और इसका v2 का स्पीड तो u2 के बराबर होगा, मतलब जिस स्पीड से ये जा रहा था उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। और जो ये वाला है, ये अगर इसका इनिशियल स्पीड u2 हम लोग अगर जीरो मान लेते हैं तो उसमें ये -u1, मतलब जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से टकरा के रीबाउंड हो जाएगा। सो बॉल रीबाउंड विथ सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन इट कोलाइड विथ स्टेशनरी एंड वेरी मासिव बॉडी। तो इनफैक्ट ये सब सारी चीजें हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो भी कैन बी टेकन, बट हाँ एक ध्यान में रहता है कि इफ अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विथ अ लाइटर ऑब्जेक्ट, तब क्या सिनेरियोज होंगी।
और जब एक लाइटर ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा तब क्या होगा, तो ये जो है सेम स्पीड से वापस आ जाएगा टकरा के, और ये अपने स्पीड से मूव करता रहेगा, इसके स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही जब भारी ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट से आके टकराता है तो हल्का ऑब्जेक्ट डबल द स्पीड से आगे भागेगा, और जो भारी ऑब्जेक्ट है इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों? और जब ये दोनों का मास सेम होगा, है ना, हम लोग ने पहला केस किया जब m1 बहुत हैवी था, दूसरे में m2 बहुत हैवी था, है ना। अब ये m1 और m2 दोनों अगर सेम है, तो अगर देखो m1 m2 सेम है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो v1 का वैल्यू है ना 2m2/2, मतलब m1 m2 सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2u2 के बराबर, मतलब v1 इज इक्वल टू ये u2 के बराबर आ जाएगा, और v2 जो है u1 के बराबर आ जाएगा। मतलब कि दो इक्वल बॉडीज अगर इनिशियल स्पीड u1 u2 से मूव कर रहे थे, टकराने के बाद जो ये v1 v2 से मूव करेंगे, इनका ये इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था इसमें आ जाएगा और इसका इनिशियल वेलोसिटी इसमें आ जाएगा। So when masses are equal in elastic one dimensional collision, velocities are interchange, v1 u2 के बराबर हो जाएगा, मतलब पहले वाले का फाइनल स्पीड दूसरे वाले के इनिशियल स्पीड के बराबर, और दूसरे वाले का फाइनल स्पीड पहले वाले के इनिशियल स्पीड के बराबर। क्लियर है बच्चों? सो स्पीड्स गेट इंटरचेंज, अगर इक्वल स्पीड होगा तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बाद स्पीड्स इंटरचेंज हो जाती हैं दोनों। नाउ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, तो जब इलास्टिक कोलिजन होगा तब क्या लॉस इन कितना काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा वो हम लोग अगर निकालें। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 बिफोर कोलिजन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ, so decrease kinetic energy transform from body to target, decrease in kinetic energy is initial kinetic energy minus final kinetic energy, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो चेंज है डिवाइडेड बाय इनिशियल डेल्टा k बाय k, राइट। अब ये m1 हाफ हाफ कट गया, ठीक है, u1 से डिवाइड कर देंगे 1 माइनस v1 बाय u1 का होल स्क्वायर। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। सो ये जो हमारे पास v1 का जो इक्वेशन है उसका वैल्यू अगर इसमें डाल देते हैं, इफ द टारगेट इज एट रेस्ट दैट इज u2 इज 0, तब v1 का वैल्यू ये डालेंगे और उससे हम लोग को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें हम लोगों ने एज्यूम किया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाले में कि u2 का वैल्यू 0 है, टारगेट रेस्ट पे था, बट कोई जरूरी नहीं है, ये तो बस इसको प्रूव करने के लिए किया हुआ। हम लोग क्वेश्चंस को नंबर्स डाल के इक्वेशंस को सॉल्व करके भी करेंगे। Now greater the difference in masses, lesser will the transfer, lesser will be the transfer of kinetic energy and vice versa. Transfer of kinetic energy will be maximum when the difference in masses is minimum. तो जब m1 और m2 इक्वल हो जाता है तब काइनेटिक एनर्जी, m1 और m2 इक्वल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 100%. So a transfer of kinetic energy in head-on elastic collision when target is at rest is maximum.
when the masses of particle are equal, that is mass ratio is 1 and transfer of kinetic energy is 100%. तो जब दो पार्टिकल का masses equal है तब उस समय kinetic energy so transfer of kinetic energy उस समय 100% होता है. These are not very important. अब ये inelastic collision की बात कर रहे हैं जब coefficient of restitution 0 और 1 के बीच में है, right? तो before collision, during collision और after collision अब यहाँ पे momentum conserve होता है. Momentum तो हर collision में conserve होगा, तो इस collision में भी conserve होगा momentum. Total initial momentum is equal to total final momentum. From the definition of coefficient of restitution, E is equal to velocity of separation by velocity of approach. ठीक है. So E times U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. So from the two equations, right, इन दोनों को solve कर लेंगे, इसको और इसको, ये first equation और ये second equation, ठीक है. तो इससे V1 का value और V2 का value निकल गया. Loss in kinetic energy हम लोग करेंगे, मतलब total initial kinetic energy minus final kinetic energy. तो जो हमारा value आएगा वो इसके बराबर आएगा. ये सब जेनरिक टर्म्स में दिया हुआ है. हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट करके जो मासेस का वैल्यू है या स्पीड्स का वैल्यू है वो पुट करेंगे. तो देख हम लोग बस इसीलिए रहे हैं जिससे कि हमें पता रहे कि क्या कंजर्व करना है और कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. अगर इनइलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, सो टू बॉडीज मूव टुगेदर. आफ्टर कोलिजन ये क्या है, दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगा. V1 is equal to V2 is equal to V. From principle of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is m1 v plus m2 v. तो स्पीड आफ्टर कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद जो स्पीड होगा v, that is m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2. So loss of kinetic energy. So loss of kinetic energy is initial kinetic energy minus final kinetic energy, right? तो initial kinetic energy ये है और ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा. Now let us start doing the questions now. तो ये जो क्वेश्चन है पहला है ना, a body of mass m1 moving with velocity 3 meter per second collides elastically with another body at rest of mass m2, right? तो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है u1 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, इसका मास m1 है. और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, रेस्ट पे. Another body of mass m2. After collision, the velocity of two bodies are 2 meter per second and 5 meter per second. Collision के बाद जो v1 है ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया और दूसरे वाले का जो स्पीड है v2 is equal to 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, right? Respectively, along the direction of motion of m2, the ratio of m1 by m2. अब देखो by conservation of momentum, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, collides elastically, है ना, elastic collision है. So by conservation of momentum, तो पहले तो ये मानना है हमें elastic collision है. तो by conservation of momentum we have m1 u1 plus m2 u2, m1 v1 plus m2 v2, m1 u1, so m1 into 3 plus m2 into 0, m1 into v1 मतलब m1 into 2 plus m2 into 5. 3m1 is equal to 2m1 plus 5m2. इधर लेके आ जाओ, m1 is equal to 5m2 या m1 by m2 is equal to 5. तो ऑप्शन 2 हो गया. क्लियर है बच्चों?
Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A smooth sphere of mass m moving with velocity u directly collides elastically with another sphere of mass small m. एक मास कैपिटल M का मूविंग विथ वेलोसिटी u collides elastically with another sphere of mass m at rest. इसका तो u1 is equal to u हो गया, u2 is equal to 0 हो गया. ठीक है. After collision their velocities are v, capital V and small v. इसका वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v हो गया, कैपिटल V, और दूसरे वाले का जो स्पीड v2 इज इक्वल टू स्मॉल v हो गया. ठीक है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m. द वैल्यू ऑफ v, हमें v का वैल्यू निकालना है. तो देखो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हैं. और सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, m इंटू यू प्लस स्मॉल m इंटू 0, कैपिटल M इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू V. ठीक है. तो अब हम लोग को देखो, mu इज इक्वल टू कैपिटल MV प्लस स्मॉल mv. फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया. दूसरा, बिकॉज ये कोलाइड्स इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन है, तो सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, E इज इक्वल टू 1, तो E1 होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है, v माइनस कैपिटल V, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा u माइनस 0. ठीक है. तो जो कैपिटल V है, इसको हम लोग स्मॉल v माइनस ऑफ u लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके. अब ये इसका वैल्यू इसमें डाल देते हैं, क्योंकि आंसर में u और m के बीच में आंसर है, तो कैपिटल V का टर्म है ही नहीं कहीं पे, हमें स्मॉल v का वैल्यू निकालना है. कैपिटल V का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर, तो ये क्या हो जाएगा, mu इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V माइनस u प्लस स्मॉल mv. mu इज इक्वल टू mv माइनस mu प्लस स्मॉल m इंटू v. सो माइनस mu इधर चला जाएगा, 2mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू v. सो 2mu बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M से डिवाइड कर दो सबको, तो 2u बाय 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M. दिस इज इक्वल टू v. ऑप्शन 3.
क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. Now a body P, capital P strikes another body, capital Q of mass, that is P times that of body P, and moving with a velocity that is 1 by Q times the velocity of body P. So if body P comes to rest, the coefficient of restitution is. So body P strikes another body Q. तो let body P का mass जो है M, ठीक है? So body P का mass अगर M है, MP मान लेते हैं, और बॉडी Q का मास जो MQ है, दिस इज इक्वल टू P टाइम्स दैट ऑफ बॉडी P टाइम्स MP हो जाएगा MQ का वैल्यू, राइट? और इसका एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी दैट इज 1 by Q टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ P. तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो UP है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा UQ is 1 by Q times the velocity of body, 1 by Q times UP. ये हमारा UQ इनिशियल स्पीड हो गया. If body P comes to rest, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी जो है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब VP is equal to 0 हो गया. फाइनल वेलोसिटी हम लोग को VQ का पहले तो निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, ठीक है? तो फाइनल वेलोसिटी निकलेगा तभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल सकते हैं. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग कर लेते हैं पहले. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, so by conservation of momentum we have mass of P into initial velocity of P, mass of Q initial velocity of Q, mass of P final velocity of P, mass of Q final velocity of Q, mass of P MP initial velocity of P UP, mass of Q is P times MP, और initial velocity of Q 1 by Q times UP. MP VP हम लोग को निकालना है, VP तो 0 है, तो ये 0 हो गया, और MQ है हमारा P times MP into velocity of Q. तो velocity of Q इससे हमारा निकल जाएगा. अब UP को कॉमन ले लेंगे, MP UP कॉमन ले लो, MP into UP 1 plus P by Q is equal to P times MP into VQ. MP कट गया, P से यहाँ पे पूरे को डिवाइड कर देंगे, P से डिवाइड कर देंगे तो UP into 1 by P plus 1 by Q is equal to VQ. वेलोसिटी ऑफ Q निकल गया. अब ये निकलने के बाद हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो, P का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, VQ माइनस VP,
velocity of separation is vq minus vp by velocity of approach होगा इसका स्पीड p का स्पीड ज्यादा होगा q से, तो दैट इज up माइनस uq. vq हम लोग निकाल चुके हैं, up इंटू 1/p प्लस 1/q माइनस vp हमारा 0 है, डिवाइडेड बाय up माइनस uq, up माइनस uq हमारा up/q है. तो E का जो वैल्यू होगा up यहाँ पे P प्लस क्यू बाय पी क्यू हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो Q प्लस P बाय पी क्यू हो गया, डिवाइडेड बाय UP कॉमन ले लोगे, Q माइनस 1/Q हो गया. UP और UP कैंसिल हो गए, तो दिस इज, ये ऊपर चला जाएगा P प्लस Q, ये Q से कैंसिल हो जाएगा, P प्लस Q इंटू P इंटू Q माइनस 1, P इंटू Q माइनस 1. एक मिनट, कुछ P इंटू Q माइनस 1 ऑप्शन में जो है ना, देयर इज सम मिसप्रिंट, इट विल बी P टाइम्स Q माइनस 1. क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? Yes, sir. This question, a sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of mass m, same mass. तो देखो ये है मास m, इसका भी मास m है, मूविंग विद अ कांस्टेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, और ये है ना स्टेशनरी स्फीयर है ना, u इज इक्वल टू 0 है इसका, राइट. If E is the coefficient of restitution, then ratio of velocities of two spheres v1 and v2 after collision. ठीक है. So देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारा हो जाएगा mu. अब हमें पता है, देखो E coefficient of restitution है, अब ये mu प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू ये वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट. ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन, और इसका आफ्टर कोलिजन लेट्स से v1 है प्लस mv1, राइट. अब ये तो 0 ही है, m कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू v1 प्लस v2, पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन,
coefficient of restitution E is equal to velocity of separation. Velocity of separation मतलब v1 minus v2 by velocity of approach, that is u minus 0. ठीक है, तो दिस इज v1 minus v2 by u, ये e का वैल्यू हो गया. सो v1 minus v2 is e into u, ये सेकेंड हो गया. अब देखो ये दो इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लो और हम लोग उससे v1 by v2 निकाल सकते हैं. तो देखो v1 plus v2 निकाला है u और v1 minus v2 है eu. इनको सॉल्व करो, ऐड कर दोगे तो दिस गेट्स कैंसिल. ट्वाइस ऑफ v1 is equal to u plus eu और v1 is equal to e, u कॉमन ले लो, e plus 1 divided by 2. ठीक है, और v2 का वैल्यू अगर इसी में से निकालोगे तो ये v2 क्या हो जाएगा, v1 minus eu हो जाएगा. v1 minus eu, v1 है u times e plus 1 divided by 2 minus eu plus u minus 2 eu by 2. So which is equal to u minus eu upon 2. Right? So this is our third equation. Right? v2 का वैल्यू, v1 का वैल्यू दे रखा है, इसको चलो थर्ड कर लो और इसको फोर्थ कर लो. अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है आप v1 by v2 निकालना है, v1 divided by v2. So v1 is u times e plus 1 by 2 divided by u times 1 minus e by 2. u and 2 gets cancelled. v1 by v2 is e plus 1 by 1 minus e. So 1 plus e by 1 minus e, option 2. क्लियर है बच्चों? तो देखो वन डायमेंशन में जो कोलिजन है उसमें इतना ही है. अगली क्लास में हम लोग थोड़ा ऑब्लिक कोलिजन्स के क्वेश्चंस कर लेंगे मंडे को, और बाकी वी कैन स्टार्ट विथ रोटेशन इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. ओके, बाय बच्चों, एंड बाय एंड टेक केयर. स्टडी वेल. आई अपलोड ऑल दीज स्टडी मटेरियल्स. पहले वाले भी रिवाइज करो और ये वाले जो अपलोड करेंगे उसको भी करो, है ना.